Supreme Court number of judges amendment bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. سینٹ اور قومی اسمبلی میں اہم ترین قانون سازی، حکومت کی 6 اہم ترین بلوں کی تیز ترین منظوری، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل 2024 منظور، ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کرنے کی منظوری، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کرنے کا ترمیمی بل 2024 بھی منظور، بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیے، بل پیش کیے جانے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج اور نعرے بازی، اپوزیشن اراکین نے اسپیکر ڈائز کے سامنے جمع ہو کر بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی ایوان میں ہاتھا پائی، اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی۔ میں بتاؤں تو صحیح، میں نہیں سننے دوں گا نا سر، نا یہ نہیں بولیں گے، تشریف نا رکھیں سر پہلے بات تو سنیں، گوہر صاحب ان کی بات سننے پھر میں آپ کو موقع دیتا ہوں۔ یہ نہیں چلے گا، یہ کر لے پھر سر، آپ میسج میں ڈالیں، یہ نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے سر، میں کہہ رہا ہوں نہیں سنیں گے۔ Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. قومی اسمبلی سے سروسز چیف کی مدت ملازمت 3 برس سے بڑھا کر 5 برس کرنے کا بل کثرت رائے سے منظور، آرمی ایکٹ ترمیمی بل 1952 اور پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اور پاکستان نیوی ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور، بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیے، آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے تحت پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا، تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم لا کر سروسز چیف کی مدت ملازمت کو 3 سے 5 برس کرنے کا خوش آئند فیصلہ، آرمی ایکٹ کے مطابق سروسز چیف کی مدت ملازمت 3 برس تھی، جس کو قومی اسمبلی نے ترمیمی بل کے ذریعے 5 برس کر دی، یہ ایک انتہائی اہم اور خوش آئند فیصلہ ہے، کیونکہ پالیسیوں کے تسلسل اور استحکام کی خاطر یہ قدم انتہائی ضروری تھا۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی، جس سے یقیناً سپریم کورٹ کی کارکردگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی آسان بنے گی۔ دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا، یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ نئی قانون سازی 26ویں آئینی ترمیم کی توہین ہے، کسی کو بھی شک کی بنیاد پر نوے روز اپنی تحویل میں رکھنا اور تحویل کی مدت میں اضافہ کرنا ملک میں سول مارشل لا قائم کرنے کے مترادف ہوگا اور جمہوریت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہوگا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو جمہوریت اور ووٹ کو عزت دینے کے علمدار ہیں، وہ آج ایک ایسا قانون پاس کر رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک۔ سرکار کی ہمیشہ اسٹیٹ کے 3 ستون ہوتے ہیں، اگر اس میں سے ایک ستون آپ کمزور کرے تو آپ پوری ریاست کو کمزور کر رہے ہیں۔ جو ججز کی تعداد بڑھانے والی تھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا، آئین کی بے معنی کیا جا رہا ہے، جمہوریت کو بادشاہت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کو رول ختم کیا جا رہا ہے۔
आइन को बेईमानी और जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है। हमारी सियासी कमेटी फैसला करेगी कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं। आज तक कोई कानून इस हुकूमत ने कानून के मुताबिक पास नहीं किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। ये जजेस नहीं बढ़ाना चाह रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना और नून लीगी पार्लिमानी पार्टी इजलास में अहम उमूर ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना में भी रद्दोबदल का इशारा। वफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाएगा। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमन कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार सामने है। कश्मीरियों फ़लस्तीनियों की हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी का इफ्तिताह किया। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का नया सदर कौन होगा? अमेरिकी सदारती इंतखाब में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी। एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन और फ्लोरिडा समेत कई रियासतों में कबल इस वक्त वोटिंग जारी है। 7 करोड़ 80 लाख से ज़ायद अफराद 5 नवंबर से पहले ही वोट डाल चुके हैं। कमला हैरिस ने भी मिशिगन में अपना वोट कास्ट कर दिया है। गुज़िश्ता इंतखाबात में मजमूई तौर पर 16 करोड़ वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया था। अमरीकी सदारती इंतखाबात, ट्रंप और कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम तेज। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में जीत का दावा। रैली से खिताब में कहा कि बाइडेन और कमला हैरिस की मुआशी पॉलिसियां नाकाम हो रही हैं। इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा और तारिकीन वतन का दाखिला बंद करूंगा। कमला हैरिस ने कहा ट्रंप की सियासी कहानी खत्म हो गई, इक़्तिदार में आकर गाजा जंग का खात्मा करूंगी। अमरीकी इंतखाबात में जीत के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का किरदार अहम। 50 रियासतों और वाशिंगटन डीसी के 538 इलेक्टोरल वोट्स। अमरीकी इंतखाब में 7 रियासतें इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गईं। स्विंग स्टेट्स में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में कांटे का मुकाबला। एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन स्विंग स्टेट्स में शामिल। इन रियासतों में मजमूई इलेक्टोरल वोटों की तादाद 66 है। अमरीका की 236 साल तारीख में कोई भी खातून सदारती इंतखाब नहीं जीत सकी। 1788 में पहले सदारती इलेक्शन हुए थे। अब तक 46 अफराद ने अमरीका के सुदूर का ओहदा संभाला। हिलरी क्लिंटन को 2016 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप से शिकस्त हुई। कमला हैरिस इलेक्शन जीती तो अमरीका की पहली खातून सदर होंगी। अमरीकी सदारती इंतखाब के पाकिस्तान पर गहरे असरात। अमरीका की मशरक़ वस्ती से मुतालिक पॉलिसीज़ में पाकिस्तान का किरदार हमेशा निहायत अहमियत का हामिल रहा। अमरीका ने माशी मुआहिदों में भारत को हमेशा पाकिस्तान पर तरजीह दी है। माजी में कब कौन कौन से अमरीकी सुदूर पाकिस्तान आए, अगर तारीख में जाएं तो इसकी मिसालें बहुत कम हैं। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? कौन सी रियासत करेगी अमरीकी सदर का फैसला? अमरीकी इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है? अमरीकी सदर के इंतखाब का तरीक़ाकार क्या है? अमरीकी इलेक्शन का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रियासतें कौन कौन सी हैं? वोटिंग से जश्न तक तबसरे और तज्ज़िये, अमरीका से खुसूसी कवरेज, पाकिस्तान से हर खबर पर नज़र। ये सब कुछ और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ GTV न्यूज़ पर। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज से मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक सिस्टम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसियत से लैस है। सारे मुकदमात आईनी बेंच में ना लेके जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंचेस से मुतालिक दिलचस्प रिमार्क्स।
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सोई नॉर्दर्न ओवरबिलिंग केस की समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स किए कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं, सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेके जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। सिंध असम्बली में सूबाई आईनी बेंच के कयाम के लिए करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी MQM की हिमायत, PTI जमात इस्लामी ने मुखालफत की। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने का इंतजार कर रहे थे, सही वक्त पर करारदाद लेकर आए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी की दरखास्त दायर। कलअदम करार देने की इस्तदा। करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सीनियरिटी के मुताबिक होगा। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस का तकर्रुर नए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुअत्तल की जाए। दरखास्त में वफाक समेत 4 सूबों को फरीक बनाया गया। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 2.5% कमी। शरह सूद 17.5% से कम करके 15% कर दी गई। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कराची चैम्बर ने शरह सूद 2.5% कमी को मुस्तरद कर दिया। सीनियर नायब सदर FPCCI का कहना है कि हुकूमत शरह सूद को फौरी तौर पर 12% पर लाए। हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से, स्टेट बैंक से, कि इसको फौरी तौर पे जो है इंटरेस्ट रेट को 12% पर लाया जाए और ये जो 2.5% है FPCCI इसको मुस्तरद करता है। वज़ीर दिफा की बानी PTI से डील की तरदीद। पार्लियामेंट आमद पर बानी PTI के साथ डील से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो आपसे सुना है। बुशरा बीबी जहां भी मौजूद है, मुझे इस पर कमेंट नहीं करना। मेलबर्न में पाक ऑस्ट्रेलिया टाकरा। ऑस्ट्रेलिया की पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त। पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 203 रन का हदफ दिया। मेजबान टीम ने हदफ 33.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जोश इंग्लिस 49 और स्टीव स्मिथ 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे में लो स्कोरिंग मैच को पाकिस्तानी बॉलर्स ने दिलचस्प बना दिया। कैंगरूज के बल्लेबाजों को 204 रन के हदफ के हुसूल के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों से मैच जीतकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। शानदार कारकर्दगी पर ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच रहे। कनाडा ने भारत को साइबर थ्रेट्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मोदी सरकार की दूसरी रियासतों के मामलात में दखल अंदाजी खोलकर सामने आ गई। इंडिया साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए अपने मुखालिफिन को निशाना बना रहा है। भारत साइबर सलाहियतों को हमारे शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जो कनाडा की कौमी सलामती के लिए खतरा है। कैनेडियन खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट। चीन के शिमाल मशरकी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बर्फबारी ने हर शय को सफेद कर दिया। वहां के मनाजिर किसी परिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं। चीन में होने वाली चाइना हॉकी लीग में शिरकत के लिए कौमी खिलाड़ियों का तरबियती कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी। 11 से 21 नवंबर तक खेली जाएगी। और लाहौर में सजा फैशन का पावर शो, जहां मुख्तलिफ ब्रांड्स ने सिंगार, मलबूसात और जेवरात की नुमाइश की। हसीनाओं ने रैंप पर जलवे बिखेरे।